discussion inheritance and variation. बेल बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी, so that you know what is my next video which has been uploaded. You'll be getting to know it, and सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. कुछ बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ. दैट जेनेटिक्स इज द स्टडी, or you can say the field of study, which is going to refer to the principles and the mechanism of heredity and variation. Heredity, we say, is the basis, we can say, about the transference of the characters. For example, let me give you an example to make it easy for you, ताकि आपके लिए बहुत ही easy बन जाए ये definition. So let me make it, ये कुछ ऐसी कुछ characters हैं, जैसे कि आपके बाल black color के हो सकते हैं कि आपके बाल कुछ और color के हैं, बल्कि you will be finding that in your family someone has brown hair, someone has black hair, but you have got another, you have got a color which is a mixture of black and brown color. So this can happen because you are getting those genes which are going to be transferred from your parents to the progeny. Progeny means the offsprings. प्रोजेनी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, जिसको कहा जाता है बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि आपने कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स, ये नॉट ओनली अबाउट योर मॉर्फोलॉजी, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी रिलेटेड नहीं है. मॉर्फ मीन्स फॉर्म. जैसे कि मैंने आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, दिस इज माई फॉर्म. ये सिर्फ एक फॉर्म के बारे में नहीं बताया जा रहा है. इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजी, द साइकोलॉजी and even the behavioral trait. That means the characters which are going to be transmitted from the parents to the progeny, यानी कि offspring पे जो whatever the characters जो है कि parents से offspring पे आ रहे, next generation पे आ रहे, ये सिर्फ इस basis पे नहीं होते कि only looks. It does depend on the entire gene sequence and the characters or the traits that will be transmitted in terms of physiology, in terms of psychology, in terms of morphology and behavioral trait. So genetics is the field of study which is going to be related to the mechanism and the principles of inheritance, that is heredity. Next comes the point that is Mendel's law of inheritance. Gregor Johann Mendel, ये नाम आप रट लीजिए, आप याद कर लीजिए. He is known as the father of genetics because he is the person who found out for the very first time, with the help of mathematical explanations, he used mathematics to explain the laws and the theories, and his theory is the law of inheritance. He is known as the father of genetics. Inherit करना यानी कि आप पेरेंट्स से प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन पे आ रहे हैं. और ये नेक्स्ट जनरेशन पे जब आते हैं तो वेरिएशन ज़रूर देखा जाता है. वेरिएशन मीन्स कुछ अलग ही देखा जाता है. इट इज़ द डिग्री बाय विच पेरेंट पे कुछ था, प्रोजेनी यानी ऑफस्प्रिंग में कुछ और देखा गया, कुछ तब्दीली ज़रूर नोट की गई है. That means there are some changes, some differences which are found in the offsprings that were not there in the parents, and this is again the variation. And by what degree it is, कितना हद तक ये देखा जा रहा है. And इसके reasons क्या हो सकते हैं? Reasons हो सकते हैं that is reshuffling of the genes यानी जो basis है, जो unit of inheritance है genes, उसमें कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ चेंजेस देखा गया है, कुछ म्यूटेशंस की वजह से हो सकते हैं. म्यूटेशन मीन्स द ड्रास्टिक ऑल्ट्रेशन ऑफ द जीन्स, कुछ रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो सकते हैं. सो देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस. सो लेट्स अंडरस्टैंड Mendel's law of inheritance. Gregor Johann Mendel, he conducted the experiment, and this experiment he carried on with the garden pea. Okay, the name of the plant was garden pea. Pisum sativum we call it. These plants, when he was working, he selected tall plants also, dwarf plants also, and he tried to cross them. That means he was trying to prepare some of the hybrid kinds. And when he found in the first generation, the plants that he got were all tall plants.
सो इन द फर्स्ट जनरेशन मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल जब अपना वर्क, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो हाइब्रिड मीन्स ही वाज वर्किंग, उनका वर्क जो था वो टॉल प्लांट्स के साथ भी था और ड्वार्फ प्लांट्स यानी कि शॉर्ट प्लांट्स के साथ भी था। प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किया था पी प्लांट। मैं कुछ ही देर में बताऊंगी आपको कि पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किए थे, क्यों कोई और प्लांट क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो मैं आती हूँ इस टॉपिक पे। सो पहले इसको क्लियर कर देती हूँ। व्हेन मेंडल वाज वर्किंग, जब मेंडल अपना वर्क कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइब्रिड तैयार करने की कोशिश की। ही फाउंड दैट द जो लंबे प्लांट्स थे और जो छोटे छोटे प्लांट्स थे, ड्वार्फ प्लांट्स थे, तो एक ही ट्रेट का कॉन्ट्रास्ट उन्होंने तैयार किया। कॉन्ट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट, एक टॉल के साथ एक शॉर्ट। तो ही वाज क्रॉसिंग, उन्होंने क्रॉस बनाने की कोशिश की एंड ही वाज सक्सेसफुल। एंड when he crossed the tall plants, सारे tall plants और सारे dwarf plants का cross जब उन्होंने तैयार किया, when he prepared the cross or the hybrids of the tall and the dwarf plants, he found all the plants, सभी plants F1 generation, which we call it in the language of biology the first filial generation, यानी कि first F1 hybrid plants, hybrid generation जो तैयार हुआ था। T and T we call it, a capital T which is denoting a dominant character, एक small t जो आप recessive character को बता रहे हैं। तो he was using mathematics, उन्होंने mathematics का help से ही ये prove किया था। तो he was using mathematics over here। तो उन्होंने देखा कि सारे plants तो tall ही आ गए हैं, all are tall plants, phenotypically अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो सभी plants tall ही थे। This was the first generation, the selection of the pea plant। अब इस बात पे आते हैं, he selected pea plant। What was the reason? There are few reasons you need to understand. सबसे पहली बात है, pea plants have a short lifespan. Lifespan short होते हैं, यानी आपको अपना observation जो है उसी दौरान आपको सारे observations मिल जाएंगे. So it was easy for him. Next is self-pollinating है. हालांकि उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद ज़रूर ली. So that means he used the process of artificial hybridization, which is actually the cross pollination process. But all these plants, pea plants, were self-pollinating. So it was easy for him to work, and the characters or the contrasting characters were very distinct for him to understand and relate his observation. Lifespan was short, distinct characters were there, they could self-pollinate, they even had the facility of working on in the entire lifespans. All the observations could have been done very easily by Gregor Johann Mendel. And also another point that has to be noted, these plants, the next generations when he found the seeds were all grown, they were all fertile. बात को एक पॉइंट को क्लियर कर देती है. हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन का ही टेक्निक है, जहाँ पे पहला मेथड होता है इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ द एंथर. एंथर को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए और पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कीजिए. दिस वाज द सेकंड स्टेप. तो दिस इज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो अप्लाई किया गया था. अब F1 प्लांट्स पे जब हम जाते हैं, F1 यानी फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड प्लांट्स जो तैयार हुए थे वो बेसिकली सब जो है टॉल थे. दीज वर द टॉल प्लांट्स दैट वर सीन इन द F1 hybrid generation or the first filial generation. Next, with some other traits also if we take, he found that the observations were quite similar. Gregor Johann Mendel उनका observation quite similar था. बाकी सब trait के against में अगर हम लोग talk करेंगे, we talk about those points also. But in the F2 generation, यानी कि हम लोग अब next generation पे आते हैं. F1 तो सब tall plants हो गए. अब F1 plants, first hybrid plants जो तैयार हुए थे, वही प्लांट्स को अगर हम लोग सेल्फ पॉलिनेटिंग कर पाए, सेल्फ पॉलिनेटिंग यानी वो आपस में ही वो पॉलिनेशन कर रहे हैं, वी फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन चेंज हो गए. द सेकेंड फिलियल जनरेशन और F2 जनरेशन, द प्लांट्स दैट वर सीन वर हैविंग सम चेंजेस. और वो क्या चेंजेस थे? यही वो चेंजेस के बारे में जो मैं बता रही थी. दीज चेंजेस आर कि यहाँ पे रेशियो कुछ अलग दिखाई दिया. ज़्यादातर प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वर टॉल and less number of plants, but ज़रूर 100% कुछ plants ऐसे भी थे जो short भी हुए थे. Proportion कुछ इस तरह था कि 1/4 plants जो है वो short थे, यानी कि 1/4 plants were shorter in height in the second filial generation, but 3/4 plants were there which were tall. Now this observation, let's talk about this observation.
had given us the law or principle of inheritance. With the monohybrid cross, we achieved this. That ये कुछ इस तरह हुआ जब हम लोग वर्क कर रहे थे, when Mendel was working, not हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसको, हम लोग तो इसको थ्योरी बेसिस पे पढ़ रहे हैं, बट when Gregor Johann Mendel worked, capital T is denoting a dominant character. हमेशा आप जब लिख रहे हो कोई भी जेनेटिक्स, जब आप जेनेटिक्स की न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो, कीप इन माइंड अगर आपका कैरेक्टर, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि इसके बाद मैं आई विल बी टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रॉस, उसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट यानी कि आप उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लू आइज, मैं ब्लू आइज को किस तरह डिनोट करूँगी, कैपिटल बी, और हमेशा एक जोड़ा लेना है। दैट मीन्स इट्स नॉट वन, यू आर टेकिंग टू एंड इट हैज़ टू बी डिनोटेड विद अ कैपिटल लेटर। ये कुछ इस तरह से है कि आप जैसे कि बता रहे हैं डोमिनेंट, दैट मीन्स इट विल बी एबल टू एक्सप्रेस, यानी कि वो सप्रेस, वो दबा हुआ नहीं रहेगा, वो अपना ये जो अपना एग्जिस्टेंस है वो जरूर दिखाएगा। दैट इज वाई इट्स द डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड अ रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि जो कैरेक्टर है सप्रेस्ड है, उसको आप नोट कर रहे हैं स्मॉल लेटर से। यहाँ पे जैसे कि हम लोग टॉल प्लांट्स की बात कर रहे थे, तो कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर द टॉल प्लांट्स, स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर द ड्वार्फ प्लांट्स। उसी तरह अगर हम लोग ब्लू आइज की बात करें, अगर ब्लू आइज डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसको डिनोट करने के लिए हमें क्या लेना है, दैट इज कैपिटल बी विल बी डिनोटिंग ब्लू आइज। मान लीजिए इसके कॉन्ट्रास्ट में आ रहे ग्रे आइज विच इज़ अ रिसेसिव कैरेक्टर, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल बी से। सो दिस इज अ वे of means formulating the basis of genetics when you are writing genetical means कुछ आपको केस दिया गया है, आपको कोई कंडीशन दिया गया है कि देखिए ऐसा अगर हो तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोजीनी किस तरह, ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, then you have to take help of these abbreviations. So that's why I have specified. तो यानी कि F2 generation मेंडल का वर्क जो है, his F2 generation work showed us that there were maximum number of plants tall, but there were few short plants also. There were some changes that were noted. And when we are talking about either of the contrasting characters, जैसे कि कुछ homozygous होते हैं, कुछ heterozygous होते हैं, कुछ ऐसे hybrids होते हैं जो same type के होते हैं। For example, capital T capital टेस्ट क्रॉस क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे एक dominant phenotype लेते हैं। डोमिनेंट फिनोटाइप मान ले, जस्ट टेक फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई, यानी आप दो प्रकार के, दो टाइप के प्लांट्स फ्लावर्स ले रहे हैं, सपोज पर्पल फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। यहाँ पे आप डिनोट कर रहे हैं पर्पल फ्लावर को कैपिटल W, एंड यू आर डिनोटिंग द वाइट फ्लावर्स विथ स्मॉल w। फॉर एग्जाम्पल I'm just giving you an example to understand, to make you understand. तो टेस्ट क्रॉस में हमें क्या सबसे पहले क्या लेना है, we will take a dominant phenotype जिसके जीनोटाइप आपको पता नहीं है। जीनोटाइप्स here you will not be knowing the combination of the genes, आपको बस इतना पता है कि ये कलर इस तरह से है, पर क्या ये प्योर है, यानी कि कैपिटल W एक प्योर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, स्मॉल w ये भी एक प्योर है, हालांकि रिसेसिव ज़रूर है बट प्योर ही है। बट जहाँ पे आप कैपिटल W और स्मॉल w की बात कर रहे हैं, यानी ये हाइब्रिड कैरेक्टर जो है वो प्योर नहीं होता है, वो हाइब्रिड होता है। तो नाउ इन दिस केस जीनोटाइप आपको पता नहीं है, यू आर अननोन अबाउट द जीनोटाइप, बट फिनोटाइप आपको पता है। फिनोटाइप मीन्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नली आप देख रहे हैं पर्पल फ्लावर्स, एक्सटर्नली आप देख रहे हैं वाइट फ्लावर्स, ये आपको पता है। तो एक डोमिनेंट फिनोटाइप को ले रहे हैं, डोमिनेंट मान लीजिए, डोमिनेंट फिनोटाइप दो कंडीशन पे हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये कैपिटल W डोमिनेंट है, ये भी हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है कैपिटल W और स्मॉल w, कैपिटल लेटर यानी कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कैरेक्टर अगर मिक्सचर भी हो तब भी ये कैपिटल W यानी कि डोमिनेंट ही होगा, यानी प्लस पर्पल ही होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको जीनोटाइप तो पता नहीं है, फिनोटाइप आपको पता है कि ये डोमिनेंट है, और इसको आप क्रॉस कर रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ जिसका रिसेसिव होमोजाइगस आप ले रहे हैं। रिसेसिव होमोजाइगस यानी रिसेसिव मतलब स्मॉल w, रिसेसिव भी है, होमोजाइगस भी है।
तो इसको आप क्रॉस कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन टेस्ट क्रॉस। व्हाई द टेस्ट क्रॉस इज अप्लाइड? टेस्ट क्रॉस अप्लाई करने का ये मकसद रहता है, दिस इज द एम दैट यू वांट टू फाइंड आउट कि नेक्स्ट जनरेशन या ऑफस्प्रिंग्स होमोजाइगस होंगे या हेट्रोजाइगस होंगे। क्या वो कैपिटल डब्ल्यू होंगे या स्मॉल डब्ल्यू होंगे या फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होंगे। तो हेट्रोजाइगस मीन्स कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि एक मिक्सचर ज़रूर होगा आपके पास जहाँ पे आप एक डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का द मोटिव बिहाइंड टेस्ट क्रॉस। नाउ लेट्स वर्क आउट, लेट्स सी मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी लो अंडरस्टैंड two laws, one is law of dominance, another is law of segregation. टेस्ट क्रॉस मैंने आपको बता दिया है, बाकी जो है हमें मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स डू सम बोर्ड